हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is determiners. So what are these determiners? Determiners are words that are used before nouns to determine or modify them or fix their meaning. डिटरमाइनर वो वर्ड्स है जो कि नाउन से पहले हम यूज करते हैं और जो कि डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है नाउन को, या फिर उसके मीनिंग को फिक्स करने के लिए यूज होता है। दे डू नॉट डिस्क्राइब अ नाउन, दे डिटरमाइन इट, दे पॉइंट इट आउट। ये डिस्क्राइब नहीं करते नाउन को, ये डिटरमाइन करते हैं उसे और उसे पॉइंट इट आउट करते हैं। लुक एट दीज फ्रेजेस, जैसे कि द बेस्ट गर्ल, माई सिस्टर, डैड शर्ट, एवरी स्टूडेंट, सम मिस्टेक। द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर आर डिटरमाइनर्स। जो वर्ड बोल्ड लेटर में प्रिंटेड है वो हमारे क्या डिटरमाइनर्स है, जैसे कि द, माई, एवरी, डैट एंड सम। Now look at these two phrases, difficult problem, that problem. In the first phrase, the word difficult describes the problem. यहाँ पर जो word difficult है वो problem को describe कर रहा है. It tells us what kind of problem we are talking about. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So it is an adjective. तो वो तो adjective हो गया. In the second phrase, the word that does not describe the problem. That कोई problem को describe नहीं कर रहा है. It determines or specify the problem. वो determine या फिर specify कर रहा है problem को. It point out a particular problem and says the problem. वो एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसे पॉइंट आउट कर रहा है या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है. सो इट इज अ डिटरमाइनर. तो ये क्या हो गया, हमारा डिटरमाइनर हो गया. ओके, now let's know about kinds of determiners. Determiners can be divided into the following kinds. अब determiner जो है वो इन following kinds में divided है. 6 types के है, जैसे कि फर्स्ट वन है आपका articles. First one is articles, a, and the. Second one is demonstratives, this, that, these, those, etc. Next one is possessives, my, our, your, his, her, its, their, etc. Next one is distributives, either, neither, each, every. Next is quantifiers, some, any, much, many, several, etc. Next is interrogatives, what, which, whose, etc. ओके, सो हम हर एक के बारे में डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट वन है हमारा आर्टिकल्स अ, एंड द. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अ एंड द. ऑफ दीज and are 2 forms of a single article called indefinite articles. यानी कि और and जो है वो हमारे 2 form of single क्या है, article है, जिनको हम indefinite article बोलते हैं. while the is the definite article. the जो है वो definite article है. An article is placed before a noun, और हमेशा article noun से पहले लगता है. If there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. अगर कोई adjective है noun से पहले तो हम adjective के पहले क्या लगाएंगे, article को लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे. जैसे कि a student, a hard working student, the wall, the high wall. ओके, तो आपने देखा कैसे noun के आगे और adjective के आगे लगा है article. Now, before moving further, there is a note. We can never use a singular countable noun alone without a slash and slash the slash my slash some etc. That is without a determiner. हम कभी भी एक singular countable noun जो है उसे अकेले यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और बिना वो भी किसके, determiner के. A is used when the sound following it as a consonant sound. For example, a nib, a useful thing, etc. हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ही लगता है. ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ इसके यूजेस दे रखे. इट इज यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है जब वो पहली बार उसे मेंशन किया गया हो, जैसे कि आई सॉ अ लायन इन द जू टुडे. Next one, before a singular countable noun which is an example of a class of things. एक singular countable noun जो कि example है किसका, class of things का, उसके आगे हम use करते हैं, जैसे कि a child, जैसे कि a childless care, a children need care. Okay, next one is to express quantity. एक quantity को express करने के लिए भी हम a का use करते हैं, जैसे कि a lot of, a dozen, a pair of, a number of. नेक्स्ट इज बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट. इन सब के आगे भी हम आ का यूज करते हैं, जैसे कि दिस कार गिव्स 15 किलोमीटर्स अ लीटर. शुगर इज ₹30 अ किलो. नाउ द नेक्स्ट वन इज बिफोर अ सर्टेन नंबर. सर्टेन नंबर के आगे भी आ का यूज करते हैं, जैसे कि 100, अ बिलियन. नेक्स्ट वन, इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के आगे भी हम आका यूज करते हैं, जैसे कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे. नेक्स्ट वन, इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन में भी हम आका यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ पिटी. Now the next thing is that can performs the same function as a.
कैन जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे आ करता है, बट एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद अ वॉवल साउंड। पर एन जो है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जिसमें जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू। Now, before moving further, there is a note. The initial sound, not the spellings, is important. Initial sound important होता है, not the spelling. जैसे कि the following words begin with vowel letters but not with vowel sound. जैसे कुछ letter है जो vowel से तो शुरू हो रहा है पर उसमें sound जो है वो vowel की तो आ ही नहीं रही है, consonant की आ रही है. They therefore take up before them. ये इनके आगे क्या लगता है? आ लगता है. जैसे कि आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, तो इनके आगे आ लगेगा. ओके. Next thing is that the following words begin with consonant letter but with vowel sound. They therefore take an before them. अब कुछ ऐसे भी words होते हैं जैसे कि जो शुरू तो वॉवल से होते हैं लेटर से, पर उनका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट वाला होता है, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? उनके आगे हम अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो शुरू कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं पर उनमें साउंड कैसे आती है? वॉवल की आती है, तो उनके आगे हम एन लगाते हैं. ओके, जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमपी. ओके, now let's talk about omission of a/an. A/an is not used. कहाँ कहाँ पर हम a और an को यूज नहीं करते हैं? जैसे कि before plural noun, plural noun के आगे हम यूज नहीं करते, जैसे a bag हम ऐसा नहीं बोलेंगे, bag, some bag, many bags, 5 bags ऐसे बोलेंगे. नेक्स्ट थिंग, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, नेम ऑफ सब्सटेंसेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेट्रा. कोई अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आ लगेज, सम लगेज हम यूज कर सकते हैं, अ पीस ऑफ लगेज यूज कर सकते हैं. ऐसे ही आ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड, अ ग्रेन ऑफ गोल्ड हम यूज कर सकते हैं. बिफोर नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ मील्स के आगे भी हम आ का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज नहीं करते, जैसे डिनर स्टार्ट्स एट 8. हाउएवर नेम ऑफ स्पेशल मील्स, हाँ कुछ ऐसे स्पेशल मील होते हैं जिनके आगे हम आ और एन का यूज करते हैं, जैसे कि अ लंच इन प्रेसिडेंट्स ऑनर. नेक्स्ट थिंग इज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे भी आ का यूज नहीं करते, जैसे रजनी. कंपेयर अ रजनी मीन्स समवन बाय द नेम ऑफ रजनी बट आई डोंट नो हर. ओके, क्रिसमस, फुटबॉल, इनके आगे भी हम आ का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज इन सर्टेन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल फ्रेजेस. कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और स्पेशल फ्रेजेस उनके आगे भी हम आ का यूज नहीं करते, जैसे कि बाय ट्रेन, ऑन फुट, इन बेड, go to school, at lunch, go home, etc. नेक्स्ट थिंग इज विद द नेम ऑफ डिजीजेस. डिजीजेस के आगे भी आ का यूज नहीं करते, एन का यूज नहीं करते, जैसे कि मलेरिया, टाइफॉइड. बट द मीजल्स, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं, द मीजल्स, द मम्स. ओके, नेक्स्ट वन विद द नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन, उनके आगे हम आ और एन का यूज नहीं करते, जैसे आवर स्कूल इज क्लोज फॉर विंटर वेकेशन इन दिसंबर, संडे इज अ हॉलीडे, स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग. Next thing is with words like father, mother, uncle, because in a given situation they are just like a proper noun. क्योंकि ये तो एक तरीके से proper noun ही है, तो इनके आगे हम आ का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि mother has just come from the market, father has not been well since yesterday. Now the next article is the. The called definite article, it can be used before singular noun. ये singular noun के पहले यूज होता है, plural noun and countable noun. Plural noun, countable, uncountable noun के आगे भी इनका यूज होता है. The is used, फर्स्ट पॉइंट, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट स्लैश ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द सन, द इक्वेटर, द अर्थ, द यूनिवर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकंड टाइम. मतलब एक नाउन जो कि डेफिनाइट हो चुका है एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकंड टाइम, जब सेकंड टाइम उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आई सॉ अ गर्ल एंड अ बॉय इन द पार्क. अभी तो वो इंडेफिनाइट फॉर्म में दोनों गर्ल और बॉय. अब जब हम दूसरा सेंटेंस यूज करेंगे तब हम द का यूज करेंगे, क्योंकि अब वो डेफिनाइट हो चुका है, वो पर्टिकुलर हो चुके हैं, जैसे कि द गर्ल वाज सिंगिंग एंड द बॉय लुक्ड एंग्री. नेक्स्ट थिंग, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनाइट बाय द बिफोर अ नाउन मेड डेफिनाइट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज. एक नाउन के आगे जो कि डेफिनाइट हो चुका है बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज, उनके आगे द का यूज, जैसे कि द बॉय इन द म्यूजियम. ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन आर्टिकल, बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर. स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर होगा, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग बाय रीजन ऑफ लोकेलिटी, जैसे कि प्लीज पैन द टेबल सॉल्ट ऑन द टेबल. Now next one,
Before a proper noun only when it is qualified by an adjective, the great Caesar. ओके एक प्रॉपर नाउन के आगे जो कि सिर्फ क्वालिफाइड है बाय एन एडजेक्टिव, जैसे कि द ग्रेट सीजर. नेक्स्ट वन, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. ओके सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल्स के आगे भी द का यूज होता है, जैसे कि द सेकंड बुक, द फर्स्ट चैप्टर. ओके नेक्स्ट वन, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स. सिंगुलर नाउन जो कि रिप्रेजेंट करे क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स को, जैसे कि द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. ओके नेक्स्ट वन, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन. एन एडजेक्टिव के आगे जो कि रिप्रेजेंट करे क्लास ऑफ पर्सन को, जैसे कि द रिच आर ग्लैमरस. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ लैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, डेजर्ट रीजन्स, इनके आगे भी द का यूज होता है, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द एल्प्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Next thing, before names consisting of noun plus before names consisting, स्टूडेंट से consisting होगा, ओके SIC नहीं आएगा इधर. before name consisting of noun plus of plus noun, that is the Bay of Bengal. okay नेक्स्ट वन, बिफोर सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट अ फैमिली. सरनेम के आगे भी, जैसे कि द गुप्तास, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हो गया इसका मतलब, एंड चिल्ड्रन. ओके नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा एक्सेट्रा, जैसे कि द व्हाइट हाउस, द ताजमहल. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, उनके आगे भी द का यूज, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ रेस, इथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, जैसे द क्रिश्चियंस, द स्पेनिश. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ होली बुक्स, जैसे कि द रामायण, द कुरान एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन, बिफोर एब्रीविएशन, जैसे कि द यूनेस्को, द ICICI. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशंस, जैसे कि हु इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर. ओके एंड बिफोर डेट, शी वाज बोर्न ऑन द 1st of April 2009. ओके तो ये थे आपके द के यूजेस. अब हम जानते हैं कि द को हमें यूज कहाँ नहीं करना है. omissions of the is not used. फर्स्ट पॉइंट, बिफोर प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं होगा, जैसे मंडे, फेब्रुअरी, कानपुर, अभिषेक शर्मा. ओके नेक्स्ट वन, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी द का यूज नहीं होगा, जैसे पोवर्टी इज अ कर्स. नेक्स्ट वन, बिफोर मटीरियल नाउन के आगे भी द का यूज नहीं होगा, जैसे वाटर इज प्रीशियस. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ मील के आगे भी द का यूज नहीं होगा, जैसे कि आई हैड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड क्लोथिंग, इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा, जैसे कि ओपन योर माउथ. ओके नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा, जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट वन, बिफोर वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट वन, बिफोर नेम ऑफ गेम्स, शी प्लेज बैडमिंटन, इसके आगे भी द का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट वन, बिफोर एक्सप्रेशंस लाइक बाय, आर, ऑल डे, इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ नोट. When nature means the spirit of creating and motivating the world of plants and animals, it is used with the. जब नेचर का मतलब होता है कि स्पिरिट ऑफ क्रिएटिंग और मोटिवेट करना द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू डिस्ट्रॉय नेचर इट विल डिस्ट्रॉय यू. नेक्स्ट वन, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, सी, ऑफिस, वर्क, यूनिवर्सिटी डू नॉट टेक द, इनके आगे द नहीं आता बिफोर देम इफ दे आर विजिटेड और यूज फॉर द प्राइमरी पर्पज फॉर विच दे आर मेड. जैसे कि आई वेंट टू टेम्पल टू प्रे, आई वेंट टू द चर्च टू सी द मोज़ैक्स. ओके अगर उनको हम प्राइमरी पर्पज के लिए यूज करें तब हम द का यूज कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन होम इज यूज अलोन और प्लेस डायरेक्टली आफ्टर अ वर्ब, एक वर्ब के बाद एकदम से डायरेक्टली होम को अगर प्लेस कर दिया है, ओके द इज नॉट यूज, तो उस समय द का यूज नहीं होगा. ही इज एट होम, ठीक है, इस समय द का यूज नहीं होगा. ही वेंट होम, नो, यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा. Now the next topic is demonstratives. This, that, these, those. This का plural क्या है, these, and that plural is those, are called demonstratives. They can be used both as adjectives and as pronoun. दोनों फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, adjective pronoun भी. They point to somebody, some people or something. They tell us which one. Okay, ये बताते हैं कि कौन सा. जैसे कि दिस इज माई बुक, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर माई के बाद क्या आया है, बुक आया है. ओके आप ये देख सकते हो कि मतलब एक वर्ब के बाद ही आया है, ये कोई नाउन से पहले नहीं है. नेक्स्ट वन, दीज आर हर एक्सक्यूजेज, ये भी आपका प्रोनाउन है, ये वर्ब से पहले ही आया है. ओके और पहले वाले सेंटेंस में भी इससे पहले क्या है, दिस आया है आपका. ठीक है, ये भी क्या है, वर्ब से पहले ही आया है. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज दैट नॉइज. अब अगर ध्यान से देखो, दैट नॉइज, नॉइज आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, उसको कौन डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, दैट कर रहा है, वो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया. ऐसे ही दिस बैग इज माइन, बैग नाउन है, बैग को कौन डिफाइन कर रहा है, दिस, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव.
Now point number 1 in this one, this and these refer to person or object close by. This is used before singular noun and these before plural noun. अब this and these जो है वो उन ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास होते हैं. अब this तो हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं और these जो है हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं. Next one, that and those refer to persons or object at a distance. That is used before singular noun and those before plural noun. That and those जो है हम person और object के लिए यूज करते हैं जो कि हमसे काफी ज्यादा दूर है. That हम singular के लिए यूज करते हैं और those हम plural के लिए यूज करते हैं. Next one, this and that can be used before the uncountable also. This and that जो है हम uncountable के साथ भी यूज करते हैं, जैसे कि that rose bush bears beautiful white roses. Next one, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट रोज बुश बेयर्स ब्यूटिफुल वाइट रोजेस. नेक्स्ट वन, दिस फूड इज नॉट फॉर टू बी टेकन. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस फूड इज नॉट फिट टू बी टेकन. स्टूडेंट्स यहाँ पर फिट आएगा, फॉट नहीं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज that plural those is used to avoid the repetition of the preceding noun. repetition avoid करने के लिए भी हम use करते हैं, जैसे कि my purse is better than that of my friend. okay, our soldiers are better equipped than those of Pakistan. Now students, let's move into the possessive point. A possessive is a word that shows that a certain thing or person belongs to somebody or something. The word my, your, his, her, its, are, their are possessives. ये सभी possessive है. मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो किसी person को belong करे, तो उनके लिए हम ऐसे वाले words use करते हैं. They are also called possessive adjective. इनको हम possessive adjective भी बोलते हैं because they are placed before noun, क्योंकि noun से पहले लगते हैं, and act as an adjective or quality words. The possessive always refer to the possessor. Possessives जो होते हैं वो possessor को ही refer करते हैं, जैसे कि I must do my duty. किसकी duty? My duty. Okay, we must do our duty. Students यहाँ पर do आएगा. Next one, you must do your duty. They must do their duty. He must do his duty. She must do her duty. It can institute or department must do its duty. Okay, do not use any apostrophe s with these possessive adjective. इनके साथ apostrophe नहीं लगाएंगे, हम apostrophe s नहीं लगाएंगे. The only exception is the pronoun one which takes an apostrophe s to form its possessive adjective. Okay, सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम apostrophe s लगाते हैं. Now carefully study the following pair of sentences. This is my pen. This pen is mine. This is his book. This book is his. It's your mistake. This mistake is yours. These are her flowers. These flowers are hers. The words mine, yours, ours, hers, his and theirs are called possessive pronoun. इनको हम possessive pronoun बोलते हैं. They convey the same meaning as the possessive adjective. Same meaning ही बता रहे हैं जैसे possessive adjective बता रहे हैं. However, possessive adjective come before the noun. पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि possessive adjective जो है वो noun से पहले ही आ रही है, जैसे कि this is my pen. Pen noun है, उससे पहले क्या आया? Adjective my आया. ठीक है. Next thing is that possessive pronoun. However, possessive adjectives come before the noun they refer to and possessive pronoun are placed after the noun they refer to. Therefore, sentences like the one below will be unacceptable. Okay, जो possessive pronoun होता है वो क्या होता है? noun के बाद आता है, जैसे कि this is mine book, ये गलत होगा. This book is mine, ये सही होगा. Now next one, the above sentence can be corrected in the following two ways. This is my book, या तो ऐसे हो सकता है possessive adjective form में, या फिर this book is mine possessive pronoun. Now study the table carefully. आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है. पर्सनल प्रोनाउन आपको दे रखे सब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन आपको दे रखा है, जैसे कि I, my, mine, you, your, yours, he, his, she, her, hers, it, its, then dash over there. Okay, we, our, ours, they, their, theirs. Now before moving further, there is a note. It is used only as a possessive adjective. सिर्फ possessive adjective के फॉर्म में हम यूज करते हैं. Possessive can be used both before singular and plural noun. दोनों के साथ यूज हो सकता है, जैसे कि my car, my cars, your book, your books, and they can be used before the countable as well as uncountable. दोनों के साथ इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि our minister, our ministers, our duty, our duties. Okay. Now let's move into the distributives. Either, neither, each, every. First one is either. Either has two meanings. इसके दो मीनिंग है. पहला मीनिंग है इसका any of the two different person or thing. मतलब कोई भी दो different person और thing में से. On either side is a narrow lane. Any of the two side, कोई से भी, कोई भी दो साइड में. ठीक है. Either book can serve my purpose equally well. मतलब कि any of the two books. Now next one, the both. Tall multi. Now next one is the both. Tall multi-story buildings have come up on either side of the road.
ईदर साइड मीन्स ऑन बोथ द साइड्स, मतलब दोनों तरफ. ओके, now let's know about neither is the opposite of neither opposite है किसका, either का. It means not the one nor the other, ना तो ये ना तो दूसरा. Okay, we have got two TVs but neither works problem. Like for example, we have got two TVs but neither works properly, यानी कि दोनों में से कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है. Next one, you should take neither side, मतलब किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए. Now next is each, every. We use each when we think of things separately one by one. हम each का यूज करते हैं जब हम separately कुछ सोच रहे हो one by one, जैसे कि each boy was given a chocolate, यानी कि हर एक बॉय को मिला. Next one, talk to each child, यानी कि हर एक बच्चे से बात करना. Next one is we use every when we think of things as a group, या जब हम ग्रुप के फॉर्म में उसे ले रहे हो, जैसे कि द मीनिंग इज विदाउट एक्सेप्शंस, बिना कोई एक्सेप्शन किए, जैसे कि एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी. नेक्स्ट वन, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज. नाउ नेक्स्ट इज वी यूज ईच फॉर अ स्मॉल नंबर, प्रेफरेबली 2, और द नंबर इन द ग्रुप शुड at least be limited, define, or the number at the group should at least be limited, definite. ओके, तो हम each का यूज स्मॉल नंबर के लिए करते हैं, प्रेफरेबली 2, और द नंबर इन द ग्रुप जो कि एकदम लिमिटेड फॉर्म में है. नेक्स्ट इज एवरी इज यूज व्हेन द नंबर इज लार्ज और इनडेफिनाइट. एवरी हम यूज करते हैं लार्ज के लिए जब नंबर इनडेफिनाइट हो. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हैज द सेम लेंथ. ओके, एवरी इंडियन मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री. Now the next is quantifiers: some, any, much, many, several, etc. Study these sentences carefully. Many jobs need to be done immediately. Some idiot keeps calling me on my cell phone. Are there any stamps in the drawer? I had to face a lot of trouble in reaching your house. Next one, he was not left with much choice. She takes no interest in her household work. The words printed in bold letters are as quantifiers. ये सब क्या थे? Quantifiers थे. Quantifiers tell us something about number of quantity. Quantifiers like many and several suggest number. तो many और several जो है वो number को suggest करते हैं. They are used with countable. ये countable के साथ use होता है. जैसे कि many people have seen this movie. I have seen her wearing this dress several times. Okay, others like much and a little suggest quantity. They are used with the uncountable. ये much और little जो है, a little, ये हम uncountable के साथ use करते हैं, जैसे कि much milk, a little rice. Okay. Some of them like some and any can be used with both countable and uncountable. दोनों के साथ use हो सकते हैं, जैसे कि some magazine, some coffee, any trousers, any bed, any trousers, any bread. Next one, some and any mean a certain number of quantity. They can be used with plural or uncountable noun. जैसे कि some chocolate, some money, any news, any new dress. Any new dresses. Next one, some is used with affirmative verbs. Affirmative verb के साथ हम some का use करते हैं, जैसे कि she bought some butter, I need some paper to write on. Next one, any is normally used with negative verbs. Any जो है वो negative verb के साथ हम use करते हैं, जैसे कि I haven't got any money, the employees haven't done any work since morning. Next one, both some and any can be used in interrogative sentences. If we expect an answer in yes, we use some. If we expect an answer in no, we use any. अगर हम yes में expect कर रहे हैं तो हम some use करेंगे. अगर हम no में expect कर रहे हैं आंसर तो हम any use करेंगे. जैसे कि did some of you hear the bell? तो इसमें हम आंसर yes में use करेंगे. Next one, do you need any help? इसमें आंसर no. Next thing, some things स्टूडेंट्स यहाँ पर समटाइम्स होगा. समटाइम्स एनी कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन इट डज नॉट मैटर विच वन और हु और व्हेन. ओके, लाइक एनी स्टूडेंट कैन गेट टू द टॉप विथ हार्ड वर्क. अब यहाँ पर ये ऐसे एकदम स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला स्टूडेंट. ओके, कोई भी हो सकता है वो. माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन कम एनी टाइम. ओके, यहाँ पर टाइम डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, मेंशन नहीं किया है. नाउ लेट्स नो अबाउट मच मैनी. बोथ मच एंड मैनी कन्वे द आइडिया ऑफ अ लॉट ऑफ. Much is generally used before the uncountable. Uncountable के साथ हम much का use करते हैं, जैसे कि it means a larger quantity of, it takes a singular verb. ठीक है, larger quantities होता है इसका मतलब, और which takes a singular verb. Now next is many. Many is used before the countable in the plural number. Countable के आगे use होता है जो plural number में है. It means a larger number of, it takes a plural verb. ठीक है, जैसे कि much labor, much joy. Okay, next is many artists, many children. Now before going further, there is a note. The expression many, which
The expression many are, which means the same as many, is followed by a singular countable noun and takes a singular verb. ठीक है, ये followed होता है by a singular countable noun and ये क्या लेता है, it takes a singular verb. Okay, many a job needs to be done immediately. Now here it is said that before going further there is a note. The expression many a, which means the same as many, is followed by a singular countable noun and takes a singular verb. Many a job needs to be done immediately. The comparative and superlative forms of much and many are more and most. Comparative और superlative form much और many का क्या है, more and most. जैसे कि little, a little. Now students, let's know about little, a little, the little, a few. Now students, let's know about little, a little, the little, few, a few, the few. Little, a little, the little denote क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिनोट करते हैं एंड आर यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ये यूज होता है. फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू डिनोट नंबर, ये नंबर को डिनोट करते हैं एंड आर यूज बिफोर द काउंटेबल इन द प्लूरल नंबर, ये काउंटेबल के आगे यूज होता है इन द प्लूरल नंबर. ओके, जैसे कि आपको फर्स्ट वन दिया है लिटिल, नॉट मच, हार्डली एनी, इट इज यूज्ड almost in the negative sense. ये almost in the negative sense में use किया गया है. There was little hope for the patient, यानी कि hardly any. Next one, a little, at least some, though not much, मतलब कुछ. Okay, a little knowledge is a dangerous thing. Next one, the little, the whole quantity, though very little. Okay, the little rice that the shopkeeper showed me was of an inferior quality. Next one, few, नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन, जिसका मतलब इतना नहीं और ऑलमोस्ट या फिर कुछ भी नहीं. ठीक है, देर आर फ्यू टेकर्स फॉर द न्यू कार, यानी कि ऑलमोस्ट नो टेकर्स. नेक्स्ट वन, अ फ्यू, सम, एटलीस्ट, यानी कि कुछ तो. ओके, थॉट, नॉट मैनी, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. नेक्स्ट वन, द फ्यू, ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू, द फ्यू स्पेक्टेटर्स हु कम, the few spectators who came to see the match were disappointed with India's batting. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो not all of them. Next one, less and least are the comparative and superlative form of little. ये comparative और superlative form है किसका, little का. Now the next is interrogative, what, which, whose, etc. Determiners that help to ask questions may be described as an interrogative. What, which, whose, how much and how many are interrogatives. ये सब क्या है, interrogatives है. They can be used before any kind of noun. ये कोई भी kind of noun के साथ हम use कर सकते हैं, जैसे कि what train, what books, which milk. Okay, I hope student that you understood this chapter. And आपका homework है कि आपको इसके exercise part को complete करना है. Now I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye.